Yes, hello boys and girls. The wait is over. The wait is over as promised. Here is the interview of All India Rank 1 Pooja Chatani ji. I hope I have spelled it right, Pooja, your surname? So Chatwani. Chatwani, sorry. So Pooja No Chatwani, problem. All India Rank 1. So Pooja, first of all, congratulations. Many congratulations to Thank you, you for sir. Thank you so securing much, sir. the best rank that is possible and for conquering Mount Everest, I would say. So congratulations, Thank you, Pooja. sir. Thank you so much, sir. Means a lot. Pooja has secured All India Rank 1 in the CMA Inter exams, the exams which were held in 2021 January, the combined exam of the two terms which was held. Okay. So this was absolutely new. Exam pattern was absolutely new, something which was absolutely new. And Pooja has topped this exam with great marks. And yes, there are other rank holders of MEPL also, like All India rank 16, rank 20, rank 22, rank 27, rank 32 is a joint rank 41, rank 42. Then we also have, let me see, the list is very long. We also have All India rank 31. We also have two other ranks are also there. And the rank number is not written in my list yet because the ranks are still pouring in. So in total, we can see that MEPL has bagged 11 to 12 AIRs. Thank you so much for that. And this is a full interview, full guidance by Pooja, All India Rank 1. So we are not going to let you go, Pooja, very easily. You will have to answer all the questions because आपने पाप कर दिया है. All India Rank 1 ला करके आपने जो है वो पाप कर दिया है. Now you belong to CMA fraternity, and every student has a right to know how did you prepare and what were your strategies and all. Everyone wants to know. Okay, so without wasting any time, let us start with the interview. The first question, which is coming from the students and from my mind also, that what is the reaction of your parents? What was the reaction of your parents when they heard that you have secured All India Rank 1? Sir, I'm still trying to process. I'm unable to process that. And likewise with my parents, they are also unable to process it. They are not expressing, but I know अंदर से बहुत खुश हैं वो भी. एंड सर मेरी जॉइंट फैमिली है तो सर बाकी सबको तो सब अभी शॉक में है, सबको बिलीव नहीं हो रहा. वो मुझसे बार बार पूछ रहे हैं कि ऑल ओवर इंडिया आई है ना, ये ऑल ओवर इंडिया आई है ना. बस यही सब चल रहा है अभी. मैं बताता हूँ, ये जो फीलिंग है ना, ऑल इंडिया रैंक आना तो आ तो गया, बट ये फीलिंग इतना जल्दी डाइजेस्ट होने वाला नहीं है. दिस फीलिंग इज नॉट गोइंग टू डाइजेस्ट. आई एम सेइंग फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस बिकॉज बीइंग ऑल इंडिया रैंक 1 इन सीएस, मेरे को पता है कि भाई लगेगा, समय लगेगा. एक हफ्ता भी कम Sir, I समय. started crying yesterday when I came to know that I had All India rank 1, and even before that. Sorry, sir. You started crying or your parents started crying? Yes, sir, I started crying. My parents, they are always confident about me. So they knew one day before results that, yeah, she's going to clear. But I wasn't sure. So, sir, I was shocked when I came to know that I have 713 out of 800. That's great. That's great. Can you tell us the subject-wise marks? Sir, okay, sir. Sir, for paper 5, financial accounting, I have 84. My paper 6. So 76. Okay, not bad. Good. Yes, sir. So direct taxation में 87. Paper 8 costing 98. Paper 9 OMSM 95. Paper 10 94. Paper 11 88 and paper 12 91. That's great. Amazing. Awesome. Thank you. Sir. And tell us something. जब आपको पहली बार पता चला that the results pattern has been changed, because the examination pattern has been changed. So the examination pattern was changed when only 2 months were left to go for the exam, and we had to revamp everything, lot of marathons. उसके बाद ही मैंने जो है ना अलग स्टाइल से मैराथन्स भी लाया. फिर हमारी पूरी टीम ने अलग से मॉक टेस्ट वगैरह 6 मॉक टेस्ट पेपर हमने सीएमए स्टूडेंट्स को करवाए. तो tell us one thing, how did you cope up in those 2 months after knowing that once although you have completed the preparation, you will again have to revamp your strategies, you will again have to rework your methods to solve the questions because it is an online exam. So how did you cope up with that in those 2 months?
सर ऑनेस्टली जब ये नोटिफिकेशन आया था ऑनलाइन एग्जाम्स का, सर मैं तो खुश थी, मैं तो बिल्कुल भी ऐसा डिमोटिवेट नहीं थी कि अब पैटर्न चेंज हो गया तो एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, बिकॉज आई न्यू दैट जो पढ़ा है अभी तक पढ़ा वही पढ़ना है, ऐसा तो नहीं है कि कुछ डिफरेंट पढ़ना है। सर जो एमटीपीज थे वो मैंने खुद से नहीं किए थे सर, ऑनेस्टली जो आपने करवाए थे 6 एमटीपीज आपके साथ ही किए थे सर, अलग से तो कुछ भी नहीं किया था। आईडीटी का मैंने सेल्फ एमटीपी सॉल्व किए थे सर, और उसके अलावा तो सर कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया था। Great, awesome, great. And I'm Awesome. eternally grateful to you, sir, for your marathon lectures, for your guidance. Thank you, sir. Thank you, sir. Means a lot. एंड पूजा, अब आप मेरे को ये बताओ कि आपका ओरिजिनल टर्म जो ड्यू था, वाज इट जून 20 और दिसंबर 20? Sir, it was June 20. Sir, actually, मेरा थोड़ी story complicated है. Sir, Okay. I gave my foundation in December 2018 Okay. when I was in third semester of graduation. Then after that, sir, results उसका Feb 19 में आया था. December 19 में मेरा first intermediate का attempt fall हो रहा था, तो उस time पे sir I started my preparation of intermediate in July 2019. उसके बाद में सर प्लान था कि सिंगल ग्रुप करके देना है, और सर बट हुआ ये था कि फिर मेरा ग्रेजुएशन की जब डेट शीट आई तो दोनों क्लैश हो रहे थे, सेम डे सेम टाइमिंग, सो आई हैड टू लीव सीएमए। उसके बाद सर मेरा बोथ ग्रुप्स देने का था जून 20 में, तो पैंडेमिक आ गया। फिर सर Pooja, there is अल्टीमेटली something called destiny, you see. yes sir, it was destined. I Yes, know. you were destined to get All India rank 1. Yes sir. I'm not saying had you not given at that time, you won't have secured All India rank 1, but still, when anything Yes. is destined and the forces, the energies are working, we can't do anything. Correct sir, correct. Always there is a better script written. तो उस समय हो सकता है आपको बहुत गुस्सा आया होगा, why is it clashing, etc. Yes sir, sir मुझे लगता था ये बैड लक हमेशा frustrating. मेरे साथ ही होगा। Yes sir, but अब समझ में आ गया सर। तो ये बहुत बड़ा सबक है सबके लिए, जिनको ये लगता है कि the things are not going in our favor, why is it happening only with us, because there is someone writing a better script for you than you yourself would have written. Correct sir, correct. Like अगर पूजा को एग्जाम के पहले हम लोग बोलते कि तुम भैया बताओ तुमको क्या चाहिए, तो ज्यादा से ज्यादा हम लालची लोग का बात नहीं कर रहे हैं, मेरे से अगर पूछा जाता हम बोलते सिंगल डेट रैंक चाहिए या रैंक चाहिए, कोई ये नहीं बोलेगा नहीं मेरे को तो रैंक 1 ही चाहिए। सर मुझे तो रैंक भी नहीं चाहिए था, मैंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं सर, ऐसा कभी थॉट भी आता था तो मैं एकदम उसी टाइम पे इमीडिएटली बैक स्पेस प्रेस करती थी, एंड कभी नहीं सोचा था सर रैंक का, और ऑल इंडिया रैंक 1 था तो सर कभी कोई सोचता ही नहीं है। नहीं, कोई नहीं सोचता, मैं भी नहीं सोचता था। ऑल इंडिया रैंक 1 देखो कोई नहीं सोच सकता, रैंक का सोच सकता है जरूर, बट AIR 1 आ जाएगा। समवन इज राइटिंग अ बेटर स्क्रिप्ट एज आई सेड। इनफैक्ट सर मेरे केस में तो रिजल्ट से एक दिन पहले आई वाज थिंकिंग, मैंने अपने फ्रेंड्स को भी सबको ये बोला जिन्होंने मेरे साथ में दिया था, दैट टैक्सेशन का पेपर हो जाएगा तो हाँ बोथ ग्रुप्स क्लियर्ड है। बट सर अब वो फ्रेंड्स पक्का बधाई बाद में देंगे, गाली पहले देंगे फ्रेंड्स तो। हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल सर, बोले तुम बोल रहे थे कि सर आपका वीडियो देख रहे होंगे वो। जबरदस्त। अच्छा एक बात बताओ पूजा, बिफोर हाउ मेनी मंथ्स should the CMA inter student syllabus get complete? Should CMA inter student complete the syllabus? Before how many months inter students should complete their syllabus? आपने कितना महीना पहले complete किया वो भी बता दो। सर मेरा 2 to 3 months पहले हो गया था सर। Great. और सर उसमें रिविजन भी हो गया था, ग्रुप 1 ज्यादा बेटर प्रिपेयर हो गया था, ऐसा था सब। ग्रेट, मतलब 2 to 3 months पहले। हाँ बोलो बोलो। यस सर 2 months आपको लेके चलना चाहिए। 2 months बिल्कुल लेकर के चलना चाहिए, खासकर given the dynamic situation that we are living in. Correct. Anytime it can be online exam, from offline to online it can be converted, from online to offline exam it can be converted, so anything can happen. So 2 months पक्का से आपके पास रहना चाहिए। सर हमारे अटेम्प्ट में तो लास्ट मंथ में हम ये फिगर आउट कर रहे थे कि क्या होम बेस देना है, सेंटर बेस देना है, क्या कंडीशंस होगी, क्या रिक्वायरमेंट है, ये सब चल रहा था। एग्जाम तो भूल गए थे हम एग्जाम देना है। आपने होम बेस दिया ना? यस सर। हाँ लास्ट में तो ये चक्कर था, होम बेस देना है कि सेंटर बेस देना है, अलग अलग बार विंडोज खुल रहे हैं। यस कुछ सर। इस विंडो में सिलेक्ट करो, कुछ उस विंडो में सिलेक्ट करो, इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ता था। यस सर।
और मेल भी चेक करते रहना पड़ता था कि इंस्टीट्यूट से कब क्या नोटिफिकेशन आ जाए, मेल्स वगैरह भी चेक करते रहना पड़ता था. इट वाज मतलब क्रेजी, द लास्ट टर्म वाज एब्सोल्युटली क्रेजी. So postpone, cancel, postpone. इट वाज एब्सोल्युटली क्रेजी. Correct, sir. और लास्ट मोमेंट पर पेपर पैटर्न चेंज हो जाना, मतलब बाप रे. मेरे को याद है इन Correct, वन ऑफ द वीडियोस आई हैड मेंशन कि अब 2-2.5 महीना बाकी, अब तो पेपर पैटर्न चेंज नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट वीक द पेपर पैटर्न गेट्स चेंज्ड. Yes, sir. और सर लास्ट चेंज ही हुआ था पेपर पैटर्न, हमें फाइनेंशियल अकाउंट्स के पेपर वाले दिन ही पता चला कि ये पैटर्न है, उससे पहले नहीं पता था सर. क्योंकि जितने भी मॉक टेस्ट वगैरह भी लिए गए थे, यस ठीक सर, है, सब में अलग अलग पैटर्न था सब सर. में अलग अलग पैटर्न थे. किसी पेपर में तो 100 मार्क्स ही, टैक्स का वन ऑफ द पेपर्स में 100 मार्क्स भी हाँ, कंप्लीट नहीं हुआ यस था. सर. ठीक है, वो सब चैलेंजेस रहता है. इंस्टीट्यूट की भी बहुत सारी मजबूरियां हैं जो हमें Yes. समझना चाहिए. इंस्टीट्यूट डिड वेरी बेस्ट फॉर एवरीवन. अब देखो, ऑब्वियस बात है, इट्स वेरी इजी टू पुट अ स्टोन एंड थ्रो एट द Correct, इंस्टीट्यूट. sir. Sure, sir. ब्लेम गेम करना तो बहुत इजी है, बट उनकी भी बहुत सारी मजबूरियां थी, एंड आई थिंक दे हैव डन बेस्ट टू देयर कैपेबिलिटीज. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन पूजा ये है कि ऐसा है कि आपने इंस्टीट्यूट मैथ्स वगैरह जो है उसको कितना इज्जत दिया. ठीक है, वो बताओ, इंस्टीट्यूट मैथ्स वगैरह को कितना इज्जत दिया, और सर सेल्फ नोट्स वगैरह मैंने बनाए थे कि नहीं बनाए इंस्टीट्यूट थे. मैट को ही इज्जत दी है सर. करेक्ट करेक्ट. उसको उसी को इज्जत दिया. डेफिनेटली जो फैकल्टी से आप क्लासेस ले रहे हैं उनकी भी बुक्स उनकी भी बुक्स रेफर करनी चाहिए, बट सर अल्टीमेटली स्टडी मटेरियल. बिल्कुल, मैंने तो भाई अपना जो सब्जेक्ट्स है उसमें पूरा का पूरा इंस्टीट्यूट का मैथ ही कॉपी पेस्ट कर रखा है. यस सर, आपके मैराथन नोट्स में भी सर. पूरा मैराथन में भी तुमने वही देखा होगा, पूरा मैंने Yes, तो वही पूरा कॉपी पेस्ट कर रखा है भाई. यस सर. तो उसके ऊपर कुछ नहीं है, वहां से पढ़ो. हाँ, उसमें एरर्स है बिल्कुल, बट किस Yes, किताब में sir. एरर नहीं होता, सभी किताब में एरर रहता है. थोड़ा सा ज्यादा एरर है, मैं ये बात मानता हूँ, तो Yes, उसको sir. रेक्टिफाई करके करो, कोई दिक्कत नहीं है. सर थ्योरी सब्जेक्ट्स में स्टडी मटेरियल डेफिनेटली करना डिफिकल्ट पूरा, हो जाता है, क्योंकि हाँ. आपको फिर आपके की फ्रेजेस कीवर्ड्स खुद ही ढूंढने पड़ते हैं, उसमें Correct. नहीं होता, उसमें बोल्ड इटैलिक्स कुछ भी नहीं होता. तो उसके लिए आई थिंक रेफर कर सकते हैं किसी फैकल्टी की, किसी भी फैकल्टी के नोट्स रेफर कर सकते हैं, आपके भी या किसी के भी सर, जो हाँ, भी पर्सन correct, टू correct, पर्सन correct. डिपेंड करता है. यस. बाकी सर स्टडी मटेरियल इंडिविजुअली पूरा. हर सब्जेक्ट में करना अब नहीं जैसे होता है. मैं लॉ का ही एक एग्जांपल लेता हूँ, सीएम इंटर लॉ का. एथिक्स आप लोग का 10 मार्क्स का है, Yes, एक चैप्टर है, वो भी इंस्टीट्यूट बेचारा 5 पन्ना 6 पन्ना उस चैप्टर को दे रखा है. तो 6 पन्ना तो भाई, अब अगर उसको भी मैं ट्रिम डाउन कर दूं, 10 नंबर का चैप्टर है वो, 10 मार्क्स, ओनली 6 to 7 पेज, उसको मैं ट्रिम डाउन कैसे कर दूं? पेन चलाना मतलब पाप लगता है मेरे को, पाप. तो मैंने फुल स्टॉप और कॉमा तक चेंज नहीं किया उस चैप्टर का, पूरा एज इट इज मैंने कॉपी पेस्ट करके पढ़ाया है. yes sir. और उसके अंदर वो एक्रोनिम्स वगैरह जो है वो सब तो Yes sir. होता ही है. Disco. हाँ. Yes sir. सेम गोज विद कंपनी ऑडिट आल्सो, वो भी आपको जो है ना पूरा एकदम अच्छे से चार्ट Yes करना sir. चाहिए. Correct. अच्छा पूजा, एक बात बताओ कि आपने जब अपना प्रिपरेशन वगैरह किया, एक बार तो फैकल्टी का सारा जो गाइडेंस रहता है उसको हम लोग कर लेते हैं, ठीक है. उसके बाद वो सारे, जैसे अकाउंट्स का बात करें, कॉस्ट एफएम का बात करें, वो सारे सम्स फिर से आपने प्रैक्टिस किए Yes sir. Yes sir. कितने बार? मैंने फिर सर मैंने सर इंडिविजुअली मैं बताऊं तो OMSM GST मैंने 5 to 6 टाइम्स रिवीजन किया है उसमें. 5 And to 6 टाइम्स रिवीजन. yes तो sir. भाई ऐसा है कि ऑल इंडिया रैंक 1 अगर लाना है तो 5 से 6 बार रिवीजन भी करना पड़ेगा आपको. नहीं सर, मिनिमम. Yes sir. मिनिमम. सर मिनिमम 3 टाइम्स रिक्वायर्ड है, क्योंकि सर वो 8 डेज में तो कुछ भी नहीं हो पाता है. हम कितना भी पहले से कितना भी प्रिपरेशन करके रखेंगे, बट मैक्सिमम 6-7 चैप्टर्स ही रिवाइज होते हैं उस टाइम पे. करेक्ट सब पहले से करके रखना इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है. करेक्ट, आई एग्री 100%. तो मिनिमम 5 to 6 टाइम्स रिवीजन चाहिए भाई. सर और मिनिमम 3 टाइम्स. नहीं, आपने 5 to 6 टाइम्स सर जीएसटी मैंने और कुछ सब्जेक्ट्स में 5 to 6 टाइम्स टाइम्स, तो किया जो है. वीक रहे वो 5 to 6 टाइम्स कर लो. और सर normally- मेरा तो सर मिसमैच हो गया था. OMSM एंड GST एक्चुअली आई कैन से, मतलब GST मेरा फोर्टे है, बट मैंने उसी को ज्यादा टाइम रिवाइज कर लिया. एंड मुझे जैसे थ्योरी सब्जेक्ट्स में ज्यादा इशू आता है, हमेशा से ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, तो मैंने लॉ को कम रिवाइज किया. बट थैंकफुली सर आपके लास्ट टाइम पे मैराथन लेक्चर्स. वो सबसे रिवीजन हो गया होगा. यस सर. थैंक यू. ओह, तो भाई ऑल इंडिया रैंक 1 लाना आसान तो नहीं है, उसके लिए मेहनत भी चाहिए रहता है, तो मेहनत तो करना पड़ेगा. अच्छा, कुछ Sir, बच्चों I का think- ये कहना है, पूजा, हाँ क्या बोल रही हो?
सर आई थिंक मैंने अपना 300-500% दिया, उससे ज्यादा मैं दे भी नहीं सकती थी, वो अपर लिमिट है। जबरदस्त। अच्छा पूजा, एक बात बताओ बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं सर पढ़ते हैं भूल जाते हैं सर, याद नहीं रहता सर, भूल जाते हैं सर, पता है 3-4 दिन तक ही वो याद रहता है, फिर जब वापस से सेकंड रिवीजन करते हैं ना सर, तो वो लगता है कि फिर से ही पढ़ रहे हैं, तो भूल जाते हैं सर, इसका क्या उपाय है? हाँ सर मैं भी भूल जाती थी, 3-4 दिन तक भी याद नहीं रहता था। ब्रेकिंग बट न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, नीचे चलाओ भाई कोई ब्रेकिंग न्यूज। ऑल इंडिया रैंक 1 भी भूल जाया करता था, क्योंकि वो भी इंसान है, वो भी मार्स से नहीं आया, वो भी इंसान है भाई। जितना बार रिवीजन करोगे उतना बार पक्का होगा। और तुमको सर कौन सा यार, तुमको कौन सा जीवन जन्मांतर तक याद रखना है? तुमको तो वो एग्जाम डे वाले दिन जा करके अपना वो जलवा दिखा करके आ जाना है बस। सो इट्स ओनली अ मैटर ऑफ 1 डे। तो जो बच्चा मेरे को बोलता है ना 3-4 दिन तक सर याद रहता है, हम बोले भाई तुमको 3-4 दिन याद ही नहीं रखना है, तुमको खाली एक दिन याद रखना है, जब तुम रिवीजन करते हो उसके बाद एक दिन तो याद रहता है। बोला हाँ सर उतना रहता है। हम बोला तब चलो, तुम चलो, तुम्हारा काम हो गया। यस सर। तो भाई भूलेंगे तो है ही, लेकिन कुछ बदमाश बच्चे ऐसे होते हैं जिन लोग बोलते हैं लास्ट में भूलना तो है ही, सीधा लास्ट में पढ़ लेंगे, एक ही बार पढ़ेंगे सीधा लिख देंगे अरे कुछ याद नहीं रहेगा। सर मुझे भी ये मेरे को ये बहुत सुनने में आया था लॉ के लिए, ऑडिट के लिए, कि लास्ट में ही पढ़ो, लास्ट में ही पढ़ो, क्योंकि अल्टीमेटली भूल जाओगे। बट सर ये गलती, ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो फाइनल में ये चीज स्पेशली ये मैं ध्यान रखूंगी इसका। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, जबरदस्त। हाँ, अब ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों के दिमाग में रहता है, इसका तुम जिस जिस तरीके से आंसर देना चाहो दो। कितना आवर्स शुरुआत से पढ़ना चाहिए? जब 3 फेज में ये क्वेश्चन है, नंबर ऑफ आवर्स दैट अ स्टूडेंट शुड स्टडी विथ ट्यूशंस, ट्यूशंस एंड सेल्फ स्टडी, उस फेज में कितना, फिर ट्यूशंस ओवर हो जाए उसके बाद कितना घंटा स्टडी करना चाहिए, और फिर एकदम जो लास्ट मंथ बाकी रहे एग्जाम का, उस एक लास्ट मंथ में क्या हम लोग को कितना आवर स्टडी करना चाहिए? सर इसका आंसर आई थिंक ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। करेक्ट। एंड सर मैं ये बिलीव नहीं करती कि आप 8 to 10 12 आवर्स पढ़ोगे तो उससे रैंक आएगा, ऐसा मेरे केस में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। सर मेरा रेगुलर कॉलेज था, तो मार्च 2020 तक जब कॉलेज में जाके क्लासेस होती थी, प्री लॉकडाउन पीरियड, तो उस टाइम पे तो सर मेरा ये होता था कि मैं कॉलेज से आती थी, उसके बाद आपको रेस्ट भी करना चाहिए। एंड फिर मैं पीजी में भी रह रही थी दिल्ली में सर, तो बहुत चीजें होती थी, तो उस टाइम पे मैं 4 to 5 आवर्स मेरा मैक्सिमम होता था, इंक्लूडिंग क्लासेस जो गूगल ड्राइव पेन ड्राइव क्लासेस ली हुई थी, इंक्लूडिंग दैट। तो बेसिकली वो क्लासेस ही देखती थी मैं उस टाइम पे। और कभी कभी ऐसा होता था सर, जैसे क्लासेस मोस्टली मैं ऐसे करती थी कि 4 to 5 आवर्स क्लासेस देखी और फिर वो क्लास खत्म होती है उसका क्विक रिविजन कर लिया। यही तो सही वो स्ट्रेटेजी है भाई, कि क्लासेस खत्म किया 4 to 5 आवर्स में, आपका लगभग 5-6 आवर्स में 3 क्लास तो हो ही जाएगा, 5 to 6 आवर्स में, यस और फिर 3 क्लास का फटाफट आधा 1 घंटा में क्विक रिवीजन कर लिया। दैट्स अ परफेक्ट स्ट्रेटेजी पूजा। हाँ सर। कंटिन्यू। और सर उसके बाद में फिर लॉकडाउन में भी मैं सेल्फ स्टडी भी मैक्सिमम 5 आवर्स, ओके, मैक्सिमम 5 आवर्स। उसके बाद में सर जब एग्जाम ट्यूशंस बहुत कंप्लीट ज्यादा हो जाता है, अक्टूबर जब ट्यूशंस नवंबर कंप्लीट हो दिसंबर। गया उसके बाद 5 आवर्स, 5 आवर्स आपने बताया मैक्सिमम सेल्फ स्टडी। यस सर, पहले 5 आवर्स करती थी, उसके बाद सर जब एग्जाम आने वाले एक थे सेकंड पूजा, अक्टूबर। सॉरी टू इंटरप्ट यू, यस मैं सर। अपने बदमाश बच्चों को बता दूं, वो 5 प्रोडक्टिव आवर्स का बात कर रही है ये पूजा, फाइव यस सर। प्रोडक्टिव आवर्स ऐसा यस नहीं हो कि बस किताबें खुली हो या हो बंद हाँ सर, दीदार। अगर जोन आउट हो गए सर फिर नहीं आ पाओगे वहां से। हाँ, फिर कोई फायदा नहीं है। मैं तो यस बोलता हूँ सर। अगर तुम किताब खोल करके इधर उधर के बाद सोच रहे हो ना, तो विद्या विद्या जो है ना उड़ जाती है। मेरी मम्मी मेरे को बोला करती थी। करेक्ट सर। तो मैं तो भाई इसको बहुत पॉजिटिवली लेता हूँ ये चीजों को। यस सर। आपको उस समय नहीं पढ़ने का मन है, आप कुछ और कर लो, किताब खुला मत रखो जबरदस्ती का दिखाने के यस लिए सर, लोगों को, बिल्कुल और सर। खुद को भी फिर सांत्वना दोगे। हम तो 12 घंटा पढ़े थे फिर भी फेल हो गए, मेरे साथ ही नाइंसाफी हुआ है, ऐसा नहीं है भाई। आपको प्रोडक्टिव आवर्स पढ़ना पड़ेगा, जब पढ़ रहे हो खाली पढ़ाई करो। हाँ सर पूजा, फिर और फिर हाँ यस बोलो। सर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जब सर एग्जाम्स एकदम आ गए थे, करेक्ट, तब मेरा भी 8 to 10 11 आवर्स गया है। ग्रेट। और फिर हाउ टू मोटिवेट योरसेल्फ पूजा, जब लास्ट में पता है कि पहले तो तुम्हारा जून में एग्जाम था, ठीक यस है, सर, पास्ट 1 ईयर फिर तो। फिर तुम्हारा वो कैंसिल होकर के दिसंबर में हुआ, फिर दिसंबर का भी पोस्टपोन होकर के जनवरी में हुआ, एकदम लास्ट मोमेंट पर पोस्टपोन हुआ था, 10 डेज 15 डेज जब बाकी था, तो यस जनवरी में हो सर। गया। तो हाउ डू यू मोटिवेट योरसेल्फ, हाउ यू मोटिवेटेड योरसेल्फ?
सर इतना नेगेटिविटी थी बाहर भी, और घर पे भी ऐसा ही होता था, हमेशा न्यूज चैनल चल रहा है तो वो देख के हाँ। और ज्यादा नेगेटिविटी होती थी, तो बहुत बार डिमोटिवेट हो जाते थे। बट कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। मुझे पता था कि मुझे ये अटेम्प्ट में, क्योंकि मेरा ऑलरेडी 1.5 ईयर हो गया है, तो मुझे ये पता था कि मुझे ये अटेम्प्ट करना है। एक बार अगर आप माइंडसेट बना लोगे तो आई थिंक। हेलो करेक्ट सर। करेक्ट, अब आ रही है आवाज। यस हाँ, सर, यस सर। इट्स परफेक्ट नाउ। यस सर। सो आई वाज सेइंग सर दैट एक बार माइंडसेट बना लोगे तो फिर सर वो मेंटेन रहता है। कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, डेली पढ़ना ही पड़ेगा। आवर्स बिल्कुल भी मैटर नहीं करते सर, 1-2 घंटे पढ़ना है बट पढ़ना पड़ेगा डेली। सेल्फ मोटिवेशन मैं बताता हूँ कैसे आता है। सेल्फ मोटिवेशन, पहला बात तो जो मोटिवेशन बाहर ढूंढ रहे हैं वो कभी नहीं मिलेगा, यस सर। क्योंकि मोटिवेशन का डेफिनेशन ही है इनर डिजायर। यस सर। आपने भी सीएमए फाउंडेशन कर रखा है, ठीक है? यस सीएमए सर। फाउंडेशन में मोटिवेशन चैप्टर भी है, उसमें हाँ लिखा हुआ है सर। मोटिवेशन मैनेजमेंट के अंदर आप लोग का मोटिवेशन मींस इनर डिजायर एंड पैशन टू डू समथिंग। इनर है वो, एंड यू आर सीकिंग इट आउटसाइड, कैसे होगा? मैं आपको टिप दे रहा हूं, राइट अ बिग गोल, राइट अ बिग गोल दैट व्हाई आर यू डूइंग द कोर्स, इससे तुमको क्या बेनिफिट होगा, व्हाई डिड यू जॉइन द कोर्स, राइट दैट बिग गोल and keep it in front of yourself whenever you feel demotivated. Always watch that goal. That goal is going to push you always. Like सर पूजा said, मुझे। मेरे को पता था, I was determined, come what में मेरे को तो एग्जाम देना ही देना है. यस सर। So that was a push. Great पूजा. Next question पूजा ये है, ये तो सीएमए स्टूडेंट जो है ना भाई, ये मैं बता दूं, ये चैलेंज केवल सीएस सीएमए के अंदर, सीएस में भी एक दिन का ब्रेक मिल जाता है बाय द वे, दोनों मॉड्यूल्स में, और जिन लोग सीएस में भी जो है ना 2 दिन का ब्रेक मिल जाता है, ठीक है, जिन लोग दोनों मॉड्यूल्स वगैरह देते हैं, बट सीएमए जिन लोग सारा मॉड्यूल साथ में दे रहा है, सारा ग्रुप साथ में दे रहा है, ये भाई बहुत बड़ा चैलेंज है सीएमए स्टूडेंट के लिए कि उनको एक भी दिन का गैप नहीं मिलता, ब्रेक नहीं मिलता. यस तो सर। क्या स्ट्रेटेजी उस समय फॉलो करना चाहिए, बताओ. सर इसके लिए एक ही स्ट्रैटेजी है कि आपको सेल्फ मेड नोट्स रहने चाहिए हर करेक्ट. सब्जेक्ट में। थ्योरी और प्रैक्टिकल जो भी है, सारे सब्जेक्ट्स में सेल्फ प्रिपेयर्ड नोट्स चाहिए ही, क्योंकि स्टडी मटेरियल लेके या कोई भी फैकल्टी की बुक लेके उस कंटिन्यूस बैक टू बैक पेपर्स में सर नहीं मैनेज नहीं हो हो सकता। सकता. आपको आपके नोट्स ही उस टाइम पे याद आएंगे पेपर में। बिल्कुल, समरी नोट्स ही काम आएगा, करेक्ट मैराथन सर। रिवीजन नोट्स काम आएगा, यस वही सर। सब चीज काम आएगा. एंड सर पहले से मटेरियल प्रिपेयर्ड रहना चाहिए हमारे पास कि हमें इसी से पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, ये तो करना ही है। अगर 6 to 7 चैप्टर्स भी पढ़ के जा रहे हैं तो वो ऐसे पढ़ने हैं जो मैक्सिमम मार्क्स कवर करें। करेक्ट करेक्ट. जैसे लॉ में मैंने आप लोगों को स्ट्रेटेजी ये बताया था कि कंपनी लॉ बाद में करना भाई. यस सर, बिल्कुल सर, मैंने किया ही नहीं था, टाइम नहीं था। और सर थैंकफुली वो आया भी, पेपर में कम आया, इंडस्ट्रियल लॉ ज्यादा आ गया था। अरे वो हमेशा फिक्स रहता है. यस सर। तो बच्चे जो है कंपनी लॉ बहुत फैसिनेट करता है, टू नो कंपनी लॉ इज समथिंग व्हिच इज वेरी कूल, एंड टू नो इंडस्ट्रियल लॉ, लेबर लॉ एंड एथिक्स, इट्स सो बोरिंग. बट भाई वो आपका 65 मार्क्स है, 65 नंबर, 65 मार्क्स. कंपनी लॉ 35 मार्क्स. ठीक है, शुरुआत में जब ट्यूशंस पढ़ रहे हो तो पहले कंपनी लॉ कर लिया, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बना लिया कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाने के लिए, बट जब रिवीजन कर रहे हो, रिवीजन स्टडी रिवर्स रहना चाहिए, पहले वो 65 मार्क्स को पूरा आपको जो है ना खत्म करना है, फिर 35 मार्क्स. तो ये सब हर सब्जेक्ट के पास आपका एबीसी एनालिसिस होना चाहिए कि पहले कैटेगरी ए वाले चैप्टर्स करो, फिर कैटेगरी बी वाले, और फिर नहीं हुआ तो कैटेगरी सी वाले. नहीं करेंगे यार, कुछ तो पहले पढ़ा होगा, उसी के आइडिया से लिखेंगे. राइट पूजा? सर लॉ में मेरा भी, मुझे याद है एग्जाम से एक डे पहले तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट्स होगा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, एथिक्स, कंपनी लॉ में मेरा सिर्फ डायरेक्टर्स हुआ था। इंडस्ट्रियल लॉ जितना हो पाया था उतना मैंने कर लिया था, और कुछ भी मैंने नहीं किया था। फिर भी 76 is something which I will also accept. 76. अगर मेरे को कोई एग्जाम के पहले बोले 76 80 दे देंगे, हम बोले ठीक है, तब एग्जाम नहीं देंगे, दे दो. मैं बता रहा हूं, मेरा सीए फाइनल का सारा पेपर बढ़िया गया था, आईआईटी लास्ट एग्जाम था. अब इतना बर्नआउट हो गया था मैं, इतना बर्नआउट हो गया था कि मैं अपने दोस्त को फोन करके यही बोला, और हम लोग दोनों यही बोले कि someone if gives us an offer of 40 also ना, just imagine rank holder student talking to each other, भाई मेरे को कोई 40 दे दे आईआईटी में, हम कल का एग्जाम नहीं लिखेंगे. आई वाज सो बर्नआउट, एंड सिलेबस फ्रस्ट्रेट हो ह्यूमंगस था. जाते हैं। मैंने Yes, भी sir. एक चैप्टर जो है ना, आईआईटी में हम लोग का 3 चैप्टर हुआ करता था उस समय जीएसटी नहीं था फॉर Yes. ऑब्वियसली. मैं थोड़ी ना अभी लास्ट 2 साल में बना हूँ. Yes, sir. तो
उस समय हम लोग का ना कस्टम, एक्साइज और सर्विस टैक्स हुआ करता था। अब सर्विस टैक्स उस समय नया नया आया था, तो अगेन इट वाज समथिंग वेरी फैसिनेटिंग, बट सर्विस टैक्स जो है 15 नंबर का था और कस्टम एक्सेस 85 का। और हम लोग सीनियर से सुन रखे थे कि कोई भी पेपर जो है अच्छे से कोई भी इंसान 85 90 मार्क्स का ही अटेम्प्ट कर सकता है, उससे ज्यादा अटेम्प्ट नहीं कर सकता फाइनल लेवल पर। हम बोला जब मेरे को 85 का ही अटेम्प्ट करना है और सर्विस टैक्स इतना 15 नंबर के लिए इतना कुछ पढ़ना है, मेरे पास रिविजन का समय ही नहीं है, मैं रिविजन ही नहीं किया सर्विस टैक्स। और मैं कुछ लिख भी नहीं सका सर्विस टैक्स में, मैं ये भी जनता को बता दूं, मैं कुछ लिख भी नहीं सका था सर्विस टैक्स में उस समय। मैंने 85 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट किया था, लेकिन जबरदस्त कस्टमर एक्सरसाइज अटेम्प्ट किया था, मेरा 60s में मार्क्स आया था आईडीटी में, तो भाई ठीक ही था। Yes, sir. तो ऐसा नहीं है कि रैंक 1 वाला स्टूडेंट भी पूरा 100% चप्पा चप्पा कोना कोना छान करके मारता है, वो स्ट्रेटेजी बनाता है, वो Yes. देख लेता है कि कौन सा कैटेगरी एबीसी वाला चैप्टर है। थोड़ा तुमको ये सब स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा अपने चीजों को। सर 100 मार्क्स का पेपर जरूर अटेम्प्ट करना चाहिए, बट 100 मार्क्स का पूरा पेपर जरूर अटेम्प्ट करना Yes. चाहिए, बिल्कुल, नहीं तो ये पाप है। इंटर लेवल Yes. पर कम से कम 100 मार्क्स का पेपर 100% आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। एंड गिवन द फॉर्मेट नाउ, Correct, sir. Correct. इट्स अ Correct. सिन इफ यू मिस आउट ऑन एनी क्वेश्चन। Yes, sir. अच्छा पूजा, ये बताओ, मॉक टेस्ट पेपर, मैराथन वीडियोस, ये सब जो मेरे चैनल पर खाली हम नहीं, बाद बाकी हमारे फैकल्टीज ने भी डाला था, हमने सारे सब्जेक्ट्स का डाला था टैक्स छोड़ करके, सारे ही सब्जेक्ट्स का डाला था एक्सेप्ट टैक्स, और इस टर्म में तो आपसे टैक्स का भी आएगा। तो वाज इट यूजफुल फॉर द स्टूडेंट्स? यस सर। सर मैंने आपका मैराथन लेक्चर्स में लॉ का सर देखा था पूरा एफए का पूरा देखा था, गौरव काबरा सर का कॉस्ट एफएम ओएमएसएम का पूरा पूरा देखा था सर। अरे वाह, 12-14 आवर्स भी था तो पूरा देखा था सर। तो गौरव काबरा सर का टीचिंग स्टाइल वगैरह आपको कैसा लगा? सर गौरव काबरा सर का काफी यूनिक है स्टाइल, हाँ। मतलब सर एकदम मार्केट से रिलेट करके बताते हैं, एकदम प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करके Correct. बताते हैं, जो आई गेस बाकी टीचर्स का नहीं होता ये ज्यादा। बिल्कुल, पूरा एकदम प्रैक्टिकली चीजों को ओरिएंटेट करके Yes. बताते हैं, ये तो है। सर उनका ओएमएसएम का एकदम मस्त था सर, हाँ मैराथन। I will surely convey him, and he will also surely watch the video, and I hope Gaurav sir you also comment in this video, and you are having a tremendous fan following all over India, Gaurav sir. Next question ये है कि मान लो जो बच्चों का, ठीक है आपका तो हो गया, बहुत बढ़िया बात है, जो बच्चों का क्लियर नहीं हुआ उनसे क्या गलती हो रही है, आपको क्या लगता है, और क्या उनको बदलाव करना चाहिए? सर मुझे यही लगता है कि कंसिस्टेंसी सर एक चीज है जो करेक्ट, स्पॉट ऑन, मेरे दिमाग में भी यही एक शब्द चलता है, कंसिस्टेंसी। इट्स नॉट कि आप suddenly you will wake up one fine morning and you'll say that this is my day, I am going to complete everything. That is never going to happen. Yes, and those who are waiting कि भाई बस बस होली खत्म हो जाने तो, होली के बाद से, भाई होली के बाद का अगर वेट करोगे तो दिवाली के बाद भी पढ़ना पड़ जाएगा। yes, sir. हाँ, यस पूजा, कंसिस्टेंसी इज द की। नेक्स्ट सर यही है, और सर जैसे मैंने बताया कि सेल्फ नोट्स बनाना बहुत मैंडेटरी है, क्योंकि मे बी वो लोग एग्जाम के टाइम पे जो रिवीजन करना होता है वो 8 डेज में अगर स्टडी मैट या कोई भी दूसरी फैकल्टी की बुक अगर लेके बैठ गए तो वो कभी भी नहीं होने वाला, कुछ भी रिवाइज नहीं होने वाला। बिल्कुल सही, पूरा समरी बिल्कुल नोट्स चाहिए सर। बिल्कुल, आप खुद का जो है शॉर्ट में कुछ भी नोट्स वगैरह जो है मेंटेन करिए। प्रैक्टिकल्स में पूजा, आई एम श्योर यू मस्ट हैव डन दिस टू, मैं तो ये पक्का से करता था। प्रैक्टिकल्स में मान लो से फॉर एग्जांपल एक टीचर एक चैप्टर के अंदर 50 तो सम करवाया है, yes, 50 सम्स, अब वो 50 में 30 तो प्रैक्टिस सम ही है, बहुत इजी इजी, जो 20 तो सम मेरे को देखना है और उसमें भी कौन सा एडजस्टमेंट मेरे को यूनिक लगा, उस एडजस्टमेंट को मार्क कर लो। yes, sir. और So हर we टीचर, जैसे have- मैं भी अपने अकाउंट्स वाले बच्चों को यही करवाता हूँ, एक मास्टर सम रहता है, वो Yes, मास्टर sir. सम देखो। करेक्ट करेक्ट सर। सर मैंने ऐसे भी किया था, जैसे एफए में अगर से इंश्योरेंस क्लेम फॉर एग्जांपल एक चैप्टर हो गया, तो उसमें ऐसे कर सकते हैं कि सर 2 पेज का समरी बना के रख लें हर चैप्टर का, बहुत बढ़िया। और वो ऐसा बनाओ कि वो आपको समझ में, वो आपको ही समझ में आ, किसी और को समझाना नहीं है हमें, तो वो आपको समझ में आना चाहिए। तो डायग्राम फॉर्म में या जैसे भी चार्ट फॉर्म में जैसे भी सही लगता है, तो वैसे हर चैप्टर का एक समरी बना सकते हैं, अकाउंट्स में भी, कोई भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में। ऑसम, ये जो तुम, हाँ बोलो। यस सर। सो स्पेशली वो चैप्टर्स में सर जिसमें एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है, जैसे इंश्योरेंस क्लेम एग्जांपल बताया मैंने, वैसे सर ये भी बहुत हेल्पफुल होता है। जबरदस्त, मतलब वॉट एवर एडवाइस यू आर गिविंग, यू डोंट नो हाउ मच प्रेशियस दिस एडवाइस इज, मतलब यू शुड चार्ज कंसल्टेंसी फीस फ्रॉम द स्टूडेंट्स, बट आई हैव ऑलरेडी सेड दैट नाउ यू बिलोंग टू सीएबी फ्रेटर्निटी,
जबरदस्त, मतलब आपने जो एडवाइस दी इट्स अ गोल्डन एडवाइस। आई होप बदमाश बच्चों, बेशर्मो, फॉलो कर लो इनको, फॉलो कर लो भाई, तुम्हारा लाइफ जो है सुधर जाएगा। जबरदस्त। ऑल्सो सर एक और चीज मुझे लगती है कि माइंडसेट बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर एक बार माइंडसेट बना लिया कि क्लियर करना है तो क्लियर क्यों नहीं होगा, होगा क्लियर सर। करेक्ट, मेंटल ब्लॉकेज मत लेकर के आओ। यस सर, कैजुअली नहीं लेना है सर। You have to be strong and Yes. do not let the odds go against you. Correct, पॉजिटिव sir. रहो, आराम से होगा। बिल्कुल सही। पूजा, एक बात बताओ, जब ये लास्ट का 2 महीना में जब ऑनलाइन एग्जाम्स वगैरह हो गया था, तब फिर क्या तुम प्रैक्टिस कर रहे थे लंबा लंबा सम्स पूरा सॉल्व करके, कि तुमने अपना स्ट्रैटेजी बदल दिया? नहीं सर, मैंने फॉर्मेट बनाना छोड़ दिया था उस करेक्ट, टाइम पे। फॉर्मेट बनाना छोड़ दिया था, रफ शीट में जैसे पेपर में करना था वैसे ही प्रैक्टिस की थी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही भाई। और एक बार कंसेप्ट समझा हुआ तो वहां से माइग्रेट करना ऑनलाइन एग्जाम्स में इट्स नॉट करेक्ट डिफिकल्ट। सर, डेफिनेटली सर। ऑनलाइन से मेन एग्जाम्स में माइग्रेट करना बहुत डिफिकल्ट है। अगर तुम ऑनलाइन पैटर्न के हिसाब से पढ़ाई किए हो, वहां से मेन एग्जाम्स में माइग्रेट करना बहुत डिफिकल्ट है। करेक्ट सर। जबरदस्त। हाँ, सोसाइटी से क्या रिएक्शन मिल रहा है? सर पेरेंट्स का बहुत तो कॉल्स रिएक्शन आ रहे हैं कल एक्सप्रेसलेस सर। रहता ही है, सोसाइटी से क्या रिएक्शन मिल रहा है? आस हाँ पड़ोस के लोग, रिलेटिव्स क्या बोल रहे हैं? सर, वो उनको अभी तक प्रोसेस नहीं हो रहा वो कि ऑल इंडिया रैंक है, जैसे मैंने आपको बताया सर कॉल पे भी। तो वो सब अभी यही पूछ रहा है मुझसे कि ऑल इंडिया रैंक है ना ये, मतलब किसी लोकेलिटी में तो नहीं है, एक पर्टिकुलर सिटी में तो नहीं है, ऐसा सबका यही रिएक्शन हम है लोग सर। कलकत्ता में हम लोग इसको बोलते हैं पाड़ा। कोई पाड़ा का तो रैंक नहीं आया ना? यस सर। नहीं भाई, ऑल इंडिया रैंक 1 है। पूजा के जितने भी रिलेटिव्स हैं, जितने भी लोग पूजा के चाहने वाले देख रहे हैं, मैं बता दूं ये ऑल इंडिया बेसिस पर रैंक है। सीएमए का एग्जाम्स हुआ था और ये सबसे ज्यादा कंपिटेटिव एग्जाम था। आउट ऑफ ऑल द टर्म्स ये सबसे ज्यादा कंपिटेटिव था, क्योंकि इसमें 2 टर्म के बच्चे कंबाइंडली एग्जाम दिए थे। तो इट वॉज वेरी कंपिटेटिव and the environment was absolutely unpredictable, no matter how well students prepared, no matter how well faculty taught, absolutely unpredictable, because ऐसा पहले कभी एग्जाम पैटर्न नहीं हुआ था। और उसमें जो बच्चे पास हुए हैं उनको भी सलाम, और जो रैंक 1 है भाई उसको तो मतलब अलग 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 जो है ना, उसको तो मतलब रिस्पेक्ट। तो जो भी पूजा के रिलेटिव्स हैं, समझो भाई इस बात को, और सारे स्टूडेंट्स को मैं ये बोलूंगा ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अगर आपने क्लियर भी किया तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आप इतिहास में अमर हो चुके हो कि हाँ, ऐसा जबरदस्त एग्जाम हुआ था जिसमें इन्होंने इतना बढ़िया जो है परफॉर्मेंस किया। ठीक है, फेलियर लोग के लिए हम लोग बात कर लिए, रैंक्स वगैरह का लिए हम लोग बात कर लिए। सीएमए फाइनल अब आप कब देने का विचार कर रहे हो पूजा? सर जून 22। जून 2022? यस सर। दोनों दोनों मॉड्यूल दोगे, दोनों ग्रुप दोगे? यस सर, यस सर। अच्छा, और ट्रेनिंग? सर ट्रेनिंग अभी मैं ढूंढ रही हूँ सर, एग्जाम के बाद से ढूंढ रही हूँ, आई एम स्टिल सर्चिंग सर। कुछ भी होता है तो आपको बताऊंगी सर, पक्का। बिल्कुल बताना है, और मेरी तरफ से भी अगर कोई सपोर्ट चाहिए तो मेरे को बताना। थैंक यू सर, श्योर ठीक है, श्योर। ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी यस सर। एंड आई मीन इट। एनी लास्ट मैसेज पूजा टू द सीएमए फ्रेटर्निटी, योर सर लवली ब्रदर्स एंड सिस्टर्स? यस सर, लास्ट मैसेज यही है कि जिसका हो गया उनको कॉन्ग्रेट्स बोल रही हूँ सर मैं, और बाकी जिनका नहीं हुआ है डिसहार्टन नहीं होना है। जून, अब रिजल्ट इतना लेट है, जून आ ही गया अभी, तो बस जो टिप्स दिए हैं थोड़ा सा उनको फॉलो कर लो। और पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ऐसा नेसेसरी नहीं है कि ये जो चीज मुझ पे एप्लीकेबल थी वो सब पे एप्लीकेबल हो। तो आपको अपने आप खुद को जज करना है, एंड जो भी जितना भी खुद के लिए जो भी सही लगता है, जितने आज सही लगता है उतने आज कंसिस्टेंसी से पढ़ना है। एंड वन मोर थिंग पूजा, क्या रूटीन वगैरह बनाते थे क्या? डेली टारगेट्स वगैरह सेट करते थे क्या? सर डेली टारगेट सर, जैसे आज फॉर एग्जांपल आज मैंने अपनी बुक्स बंद करी, तो मैं कल का पहले ही आज ही प्लान कर लेती थी कल मुझे इस सब्जेक्ट में ये चैप्टर कंप्लीट करना है। और सर शॉर्ट टर्म गोल्स बनाने चाहिए सर, लॉन्ग टर्म गोल्स तो पता ही नहीं है कल क्या होगा। बिल्कुल, शॉर्ट टर्म गोल्स मतलब वीकली टारगेट्स और मंथली टारगेट्स, राइट? यस सर, मैं तो डेली भी बनाती हूँ सर, वही हो जाए वही सफिशिएंट है। मैं खुद अपना डेली टारगेट्स बनाता हूँ, मैं दिखाता हूँ माई वर्क बोल करके। आजकल तो भाई सब कुछ पेन का जमाना गया, सब डिजिटल पेन आ चुका है। तो मैं अपना एक खुद का ग्रुप बना रखा हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप। आप बोलेंगे खुद का ग्रुप कैसे बनाते हैं? व्हाट्सएप ग्रुप में तो 2 जन चाहिए। मैं पहले इस ग्रुप में आया,
ठीक है, ग्रुप क्रिएट किया, अपनी वाइफ को ऐड किया, 2 जन हुए, फिर वाइफ को रिमूव कर दिया, अब ये खाली मेरा ग्रुप हो गया, वो ग्रुप रह जाता है। हाँ सर। और फिर और ये आइडिया भी मेरे को गौरव सर ने दिया था कि सर आप ऐसा भी एक ग्रुप बना सकते हो। मैं अपना डेली वर्क का जो टारगेट है ना वो यहाँ लिख लेता हूँ, डेली वर्क का टारगेट, कि मेरे को डेली क्या क्या काम करना है। तो भाई ये सब बहुत अच्छा हैबिट्स है। दैट इज वाई पूजा यू आर ऑल इंडिया रैंक 1 एंड वी विश यू ऑल द सक्सेस। यू हैव टू रिपीट इट एंड you will surely repeat it, I know, in CMA final, but pressure मत लेना यार, ऑल इंडिया रैंक 1 जो है it's a matter of luck, ठीक है? Yes sir, Obviously universal hard work, expiry. I'm not denying that you haven't worked hard, you have worked tremendously hard, you have done tremendously hard work, smart work, everything. It's your intelligence that has given you this all India rank 1. But as I've already said, आप अपना जैसे इस बार अपने दिया था बिना रैंक का एक्सपेक्टेशन के, वैसे ही फाइनल, कुछ प्रेशर मत लेना, बिकॉज यू नो द वर्ल्ड विल बी आइंग अपॉन यू दैट व्हाट हैपेंड इन द सीएमए फाइनल, यू स्कोर्ड सीएमए इंटर रैंक 1, व्हाट हैपेंड इन सीएमए फाइनल, डोंट टेक द प्रेशर एट ऑल, ठीक है? एज अ एल्डर ब्रदर आई एम सेइंग, डू नॉट टेक दिस प्रेशर एट ऑल। आराम से जैसे सीएमए इंटर में आ गया, हाँ ठीक है, बस हो गया। अब सीएमए फाइनल में भी वही स्ट्रेटजी फॉलो करो तुम खुद के लिए जो तुमने सीएमए इंटर में किया था, बिना रैंक का एक्सपेक्टेशन किए। Yes sir. Wish you all the very best. Thank God you so bless you. much sir. Take care. Thank you. Sir. Bye. Thank you sir. Bye sir.